Assalamualaikum students. I hope you all are doing well. Let's get start our today's lesson. In our previous lecture we have discussed about classification of elements and we have also learned about metals and non-metals. Now we are going to study about uses of some common elements, that is physical properties and uses of metals. There are many physical properties of metal due to which they have vast variety of uses. Firstly, we will discuss about state of metals. Metals exist in solid state. That's why they are used in making many things. However, mercury is found in liquid state. Mercury is filled in thermometers to measure temperature. The next property of metals is that they are hard solids. It means that they have hard texture. For example, iron is used to make steel, and this steel is then used to make bridge, rails, surgical instruments, ships, and utensils. The next property of metals is that they have metallic luster. Metallic luster means that they have shiny appearance when they are freshly cut. So this shiny appearance is known as metallic luster, and due to this property of metals are used in making utensils and picture frames. For example, gold and silvers are used to make ornaments because of their shine. Metals have high melting and boiling points. Due to this property of metals, they are used for making kitchen utensils. For example, iron, copper, aluminium are used to make variety of kitchen utensils. Metals can be drawn into sheets or into wires, as they have a property of strength and malleability. So due to this property of metals, we can make wire and sheets of metal by heating or by pressing them. Metals are good conductors of heat and electricity. That's why they are used in electrical instruments or in electrical wiring. For example, copper or aluminium are used in electrical wiring. For example, mostly the copper and aluminium are used in electrical wiring because they allow electricity to pass through them. And this property of metals is known as conductivity. So we will define conductivity as the property of metals to pass electricity through them is known as conductivity. तो स्टूडेंट्स, जो मेटल की प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी बेस पर ही उनके यूजेस हैं. तो जो मेटल की सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है कि सॉलिड स्टेट की मेटल्स जो हैं वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं. तो मेटल्स सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं. इसी वजह से ज़्यादातर चीज़ों में मेटल्स को इस्तेमाल किया जाता है. मर्करी जो है वो मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करती है और इसी वजह से मर्करी जो है उसको थर्मामीटर्स वगैरह में यूज़ किया जाता है ताकि टेम्परेचर को मेजर किया जा सके. मेटल्स होते हैं वो हार्ड किस्म के सॉलिड्स होते हैं, यानी सख्त ठोस होते हैं. मेटल की इस प्रॉपर्टीज़ की वजह से मेटल्स को शिप्स वगैरह बनाने में, ब्रिज बनाने में, रेल्स, इंस्ट्रूमेंट्स और यूटेंसिल्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है. अगली जो प्रॉपर्टी है मेटल्स की वो है मेटेलिक लस्टर. मेटेलिक लस्टर का मतलब होता है चमक, शाइन. जब हम मेटल के किसी पीस को कट करें तो ये जो फ्रेशली कट पीस होता है इसकी एक शाइनी अपीयरेंस होती है. ये जो शाइनी अपीयरेंस है, एक जो शाइन निकलती है, इस शाइन को हम कहते हैं लस्टर. तो मेटल्स की इस प्रॉपर्टी की वजह से मेटल्स को यूटेंसिल्स बनाने में और फ्रेम्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा जैसे गोल्ड और सिल्वर वगैरह हैं उनको हम ज्वेलरी बनाने में इस्तेमाल करते हैं. तो क्यों इस्तेमाल करते हैं गोल्ड और सिल्वर को ज्वेलरी बनाने में? इसलिए क्योंकि उनकी एक शाइनी अपीयरेंस होती है. अगली प्रॉपर्टी है जो मेटल्स की वो है कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं. इसी वजह से मेटल्स को बर्तन वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है. जैसे एल्युमिनियम, लोहा, तांबा वगैरह किचन में जो हम बर्तन यूज़ करते हैं वो बर्तन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स की कि इनको शीट्स और वायर्स में ढाला जा सकता है. हम मेटल्स को दबाकर या उनको हीट प्रोवाइड करके उनसे मुख्तलिफ़ किस्म की शीट्स और तारें वगैरह बना सकते हैं. क्योंकि मेटल्स जो है उनकी प्रॉपर्टी है कि वो सख्त होती हैं, उनमें एक लचक होती है. तो मेटल्स की इस प्रॉपर्टी की वजह से मेटल्स को मुख्तलिफ़ किस्म की वायर्स, शीट्स और स्प्रिंग्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है. इसके अलावा मेटल्स होते हैं वो बिजली और हरारत के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं.
यानी बिजली और हरारत को अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त देते हैं। तो इस वजह से जितनी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यानी जो बिजली की वायरिंग वगैरह है, उस वायरिंग में हम मेटल से बनी हुई वायर इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल ज़्यादातर हम कॉपर और एल्युमिनियम की वायर्स यूज़ करते हैं। तो कॉपर और एल्युमिनियम दोनों मेटल्स हैं और अच्छे कंडक्टर्स हैं, यानी हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से बहुत अच्छा पास करते हैं। इस वजह से इनको इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स और इलेक्ट्रिकल वायरिंग में इस्तेमाल किया जाता है। We have learnt about the physical properties and the uses of metals. The first physical property of metals is about state of metals. Metals are found in solid state except mercury. Mercury is found in liquid state. Mercury is filled in thermometers to measure temperature. The next property is about hardness. Most metals are hard solids. For example, iron is used to make steel, and then the steel is used to make bridges, rails, ships, girders, surgical instruments, and utensils. The next application is about luster. Freshly cut pieces of metals have brilliant shine. This shine is known as luster. For example, aluminium is used to make utensils and picture frames due to this property. Gold and silver are used to make ornaments because of their shine. Melting and boiling points of metals are very high. Due to this property of metals, copper and aluminium are used to make kitchen utensils. The next property of metals is about strength and malleability. Metals are used to make shields, wires, and springs, and this property of metals is known as strength and malleability. Conductivity. Metals like copper and aluminium are used in electrical wiring as they are the good conductors of electricity. This property is called the conductivity. In exercise, the first long question is relate the physical properties of metal elements with their uses. The answer of this question is on page number 48. इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे और इसी तरह हेडिंग्स बनाकर पॉइंट्स की फॉर्म में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हमने धातुओं के तबई ख़वास और इनकी इस्तेमालात को देखा। जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है वो है तबई हालत। धातें जो है वो ठोस हालत में पाई जाती हैं। सिर्फ मरकरी जो है वो एक ऐसी धात है जो माया हालत में पाई जाती है और टेम्परेचर मापने के लिए थर्मामीटर में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट था वो था सख्ती यानी हार्डनेस। इसमें हमने देखा कि धातें जो हैं वो सख्त ठोस होती हैं और इसलिए फिर लोहा फौलाद बनाने में इस्तेमाल होता है और फिर इस फौलाद को रेलवे लाइन और आलाते जराही बर्तन वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट था लस्टर यानी चमक। धातें जो हैं वो चमक पैदा करती हैं। जैसे ही धातुओं को फ्रेशली कट किया जाता है तो उनमें से चमक निकलती है, इसको कहते हैं लस्टर। और इस चमक की वजह से एल्युमिनियम को बर्तन और तस्वीरों के फ्रेम बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। सोना चांदी को अपनी चमक के बाइस जेवरात की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट था हमारे पास नुक्ता पिघलाव और नुक्ता खिलाव यानी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। धातुओं के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं, इस वजह से इनको किचन में मौजूद बर्तन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मजबूती और लचक यानी स्ट्रेंथ एंड मेलिबिलिटी। धातुओं की इस प्रॉपर्टी की वजह से धातुओं को चादरें, तारें और स्प्रिंग बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। जो सिक्स प्रॉपर्टी है वो है मौसलियत यानी कंडक्टिविटी। तांबे और एल्युमिनियम जैसी धातें यानी कॉपर और एल्युमिनियम जैसी धातें जो हैं वो बिजली की वायरिंग में इस्तेमाल होती हैं क्योंकि इनकी ये खासियत है कि ये बिजली को अपने अंदर से गुजरने देती हैं। इस खासियत को मौसलियत कहते हैं। और फिर हमने देखा कि धातुओं की इस प्रॉपर्टी की वजह से ही तांबे और एल्युमिनियम को मुख्तलिफ किस्म की वायरिंग और मुख्तलिफ इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में इस्तेमाल किया जाता है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि धातीय एलिमेंट्स के तबई ख़वास का ताल्लुक इनकी इस्तेमालात से जोड़िए। इस क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 48 पर है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे और इसको इसी तरह से हेडिंग्स बनाकर पॉइंट्स की फॉर्म में लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेसन आपका यहीं तक है। इन सारे पॉइंट्स को आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।